اب آتے ہیں مین ٹاپک پہ کہ دلوں کے روگ کیا کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو دلوں کے روگ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دلوں میں روگ ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں کے روگوں کو بڑھا دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا کہا نہیں مانا. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ڈاکٹر نے جو پرسکرپشن دیا ہے اس پرسکرپشن کو ہم جو کچھ ایڈوائز کیا ہے کتنی مرتبہ ڈوز لینا ہے، اگر وہ ہم ڈوز کو فالو نہیں کریں گے، ڈاکٹر کے ایڈوائز کو ہم فالو نہیں کریں گے تو ہم لوگ خسارے میں جائیں گے. ہم لوگ تو ہماری ڈیزیز تو بڑھتی ہی جائے گی. فزادہم اللہ مرضا، اس لیے تو کہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے. اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے فالوئنگ آور اون ڈیزائرس. یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ ہم ہمارے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ٹاپک پہ پورا میں نے تدبر کیا ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ نکالا ہے، کچھ آیتیں سلیکٹ کیا ہے میں نے، اور کچھ ڈیزیزز، اور اس کے اوپر تدبر کرنے کے بعد کچھ آیتیں جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تدبر کے بعد. اچھا، سب سے بڑی اور پہلی بیماری جو میں نے سلیکٹ کی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ فالوئنگ اون ڈیزائرس. اب فالوئنگ ڈیزائرس یعنی خواہشات کی پیروی کرنا، اس کے لیے میں نے ایک آیت سلیکٹ کی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا تم نے دیکھا اس کو جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے. کہ بھلا تم نے دیکھا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان پہ، دل پہ اور مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اس کو کون ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کے بعد؟ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ان باتوں سے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اپنے خواہشات کے اوپر نہ چلو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے بھی کہا کہ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات کچھ کام نہیں آئے گی، مگر جو کوئی برا کام کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا، اور جو کوئی اچھا کام کرے گا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کوئی بھی مرد یا عورت جو کوئی نیک اعمال کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ مومن ہے تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور اس کے اوپر ذرا برا، یعنی جو کھجور رہتا ہے اس کے گٹھلی میں جو دھاگا رہتا ہے اس کے برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. یہ ہو گیا ایک پہلی بیماری جو میں نے بات کی کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا کہ عمل صالح کرنا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا ہے. دوسری بیماری جو ہے وہ کسل یا لیزینس کہتے ہیں اس کو. تو کسل کے بارے میں، کسل یا لیزینس یعنی سستی، یہ سستی ہے نا منافق کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، اور وہ بھی لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے. یہ منافق کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا. کیا بتایا؟ وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم نہ سستی کرو اور نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب ہو جاؤ گے اگر تم مومن ہو، تو تم ہی غالب رہو. تیسری بیماری جو دلوں کی بیماری ہے وہ ہے شو یعنی جس میں بخالت بھی آتی ہے اور لالچ بھی آتی ہے. اسٹرنجنس پلس گریڈینس، یہ دو چیزیں ملا کے جو بنتی ہے بیماری اس کو کہتے ہیں شو. تو شو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی ہر ایک کے نفس میں شوہ بھرا ہوا ہے، یعنی ہر ایک اسٹرنجی بھی رہتا ہے اور بخیل بھی رہتا ہے، دونوں بھی ہے.
मगर आगे क्या बताया, वमन युकशुह फउलाइका हुमुल मुफलिहून, कि जिसने अपने आप को बचा दिया ये शुह की बीमारी से तो वही है जो फलाह पाएगा, वही है जो कामयाब हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए जो ट्रीटमेंट अल्लाह ताला ने बताया है वो ये है कि लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम वो खर्च न करो कि जो तुमको पसंद हो, तब तक तुम नेकी को नहीं पहुँच सकते। तो ये ट्रीटमेंट भी बताया अल्लाह ताला ने। अब और एक बीमारी बताई कि जीलसी यानी हसद, यानी दो चीज़ें हैं, एक जीलसी और एक एनवी। जीलसी उसको कहते हैं कि अगर जो दूसरे के पास है वो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास भी आ जाए, और एनवी उसको कहते हैं कि जो दूसरे के पास है वो हम चाहते हैं कि हमारे पास भी आ जाए मगर उसके पास से छिन जाए। ये तो बुरी बीमारी है। तो अल्लाह ताला ने तो पनाह मांगने के लिए कहा है, हासिदिन इज़ा हसद, कि अल्लाह ताला की पनाह मांगो जब कोई हसद करने वाला हसद करे। तो हमें हसद नहीं करना चाहिए। कहा फला तुअजिबुका अमवालुहुम वला औलादुहुम, कि तुम्हें ताज्जुब न लगे उनके अमवाल से या उनके औलाद से। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा, अल्लाह ताला उनको तो अजाब देना चाहते हैं उसके ज़रिए। जो दुनिया में उनको आराइश ज़ेबाइश दिया है वो उनके लिए आजमाइश है। अल्लाह ताला उनको अजाब देना चाहता है फ़िल हयात दुनिया व तज़हक़ु अनफुसहुम वहुम काफ़िरून, और ताकि उनकी जानें निकल जाएं जबकि वो काफिर हैं। तो अल्लाह ताला जो दूसरों को देता है वो उसकी उतनी काबिलियत होती है, इसकी वजह से वो अल्लाह ताला देता है, और उसकी हिकमत तो अल्लाह ताला ही जाने। मगर अल्लाह ताला ने उसका ट्रीटमेंट बता दिया। क्या बताया ट्रीटमेंट? उसके ऊपर गौर करने के बाद पता चला कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बाज़ुकुम अला बाज़, तुम तमन्ना न करो उसकी जो तुम में से किसी को दिया गया है, उसकी तुम तमन्ना न करो। बट यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू हैव, तुम्हारे पास जो अल्लाह ताला की नेमत है उसके ऊपर फोकस करो, उसका शुक्र अदा करो, तो लाज़िदन्नकुम, तो तुमको अल्लाह ताला दे देगा ज़्यादा। और तुम दूसरे के पास जो है उसकी तमन्ना न करो, कंप्लेन न करो, उससे तुम शिकवा करोगे। डोंट कंप्लेन, डोंट कंपेयर एंड डोंट कम्पीट। ये तीन चीज़ें 3C आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ये तीन चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमारे लाइफ में, तो हम जीलस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट बीमारी जो अल्लाह ताला ने बताई है वो है एनिमोसिटी, यानी नफ़रत, अदावत, नफ़रत। इसके बारे में अल्लाह ताला क्या कहता है कि किसी के पास तो नफ़रत न करो। हमको नफ़रत कब होती है किसी से? कि जब कोई हमारी बात नहीं सुनता, जब कोई हमारे अगेंस्ट कुछ करता है, तब हमें किसी से नफ़रत होती है। तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि वो उसके थॉट्स थे, उसने उसके हिसाब से कर लिया जो उसको समझता है, मगर क्या मैं उसके लेवल पे आ जाऊं, मैं वैसी ही सोच बनाऊं? अगर तुम किसी से नफ़रत कर रहे हो, आप किसी से नफ़रत कर रहे हो, इसका मतलब आपको मेंटल इलनेस है। किसी ने कुछ आपको कहा और फिर आपने वो कितनी मर्तबा, कितनी देर तक पकड़े रखा, ये इंडिकेट करता है कि आप मेंटली कितने हेल्दी हो। अगर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के रखा तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हो सकते, आप मेंटली हेल्दी नहीं। तो अल्लाह ताला ने इसका ट्रीटमेंट बता दिया, इदफ़ा बिल्लती ही आहसन, तुम बुराई को इस तरीके से दूर करो, अच्छाई से या भलाई से दूर करो। फिर देखो फ़ैज़ल लज़ी बैनक व बैन अदावत अन्नहु वलियुन हमीम, फिर देखो कि जो तुम्हारा पहले जानी दुश्मन था वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाता है। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और नहीं मिलता ये चीज़ मगर जो सब्र करते हैं, नहीं मिलती ये बात मगर वो लोग जो किस्मत वाले हैं। और एक बीमारी बता दी अल्लाह ताला ने, एरोगेंस, ये भी दिल की बीमारी है। एरोगेंस के बारे में बता दिया कि इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जो लोग हमारी आयतों को झुठला देते हैं और इस्तकबार करते हैं, तकब्बुर करते हैं, उनके बारे में कहा ला तुफ़त्तहू लहुम अब्वाबस समा वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजुल जमलु फ़िस्सम्मिल ख़ियात, यानी कि जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोल दिए जाएंगे यहाँ तक कि
ऊँट सुई के नाके से न निकल जाए। अब ऊँट इतना बड़ा या बहुत बड़ा रस्सा, यानी हत्ता यलिजुल जमल, ये ऊँट को भी कहते हैं, या तो बड़ी जारी रस्सी जो शिप के लिए काम आती है उसको भी कहते हैं। वो बड़ी रस्सी वो नाके में से, सुई के नाके में से तो नहीं जा सकती। तो वो जैसे इम्पॉसिबल है वैसे ही इम्पॉसिबल है कि एक घमंडी आदमी का, एक फ़ख्र करने वाले आदमी का जन्नत में चला जाना या उसके लिए अल्लाह की रहमत होना, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो इब्लीस ने भी घमंड किया था और इब्लीस ने भी डिसोबीडियंस, नाफरमानी की थी, और आदम अलैहिस्सलाम ने भी नाफरमानी की थी। इब्लीस ने नाफरमानी करने के बाद में उसने घमंड किया। उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, यानी तूने मुझे पैदा किया है आग से और उसको तूने पैदा किया मिट्टी से, मैं तो नहीं झुकूंगा। अब ये डिसोबीडियंस, उसके बाद अरोगेंस, डिफरेंस क्या है दोनों की खता में, दोनों के डिसोबीडियंस में डिफरेंस क्या है? इसने भी नाफरमानी की, शैतान ने भी नाफरमानी की, आदम अलैहिस्सलाम ने भी नाफरमानी की, मगर नाफरमानी करने के बाद वो अरोगेंट हो गया, और इधर नाफरमानी करने के बाद वो पछताने लगे, रिपेंट हो गए। यानी उन्होंने ये कहा क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। उन दोनों ने क्या कहा कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, अगर तूने हमको माफ़ नहीं किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे, हम खसारे में गिर जाएंगे, तो हम खसारा पाने वाले बन जाएंगे। तो ये चीज़ थी दोनों में कि जब हम कुछ गलती कर लेते हैं और उसके बाद उस गलती पे इसरार नहीं करते, तब अल्लाह ताला, और फिर अल्लाह ताला से हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो अल्लाह ताला गफ़ूर है, वदूद है। इन्ना रब्बी लगफ़ूरुन वदूद, यानी अल्लाह ताला माफ़ भी करता है और माफ़ करने के बाद तुमसे वैसी ही मोहब्बत करता है जैसे पहले करता था। एक आयत कि अरोगेंस का अपोजिट होता है हम्बलनेस। तो हम्बलनेस के लिए यानी अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि वबश्शिरिल मुहबितीन, वबश्शिरिल मुहबितीन, यानी बशारत दे दो वो जो हम्बल रहते हैं, जो आजिज़ी और इनकसारी करते हैं। वैसा ज़ुकिरल्लाहु वजीलत कुलूबहुम, और जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिलों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसा ज़ुकिरल्लाहु वजीलत कुलूबहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, और जो उनके ऊपर कुछ मुसीबतें पड़ती हैं तो उस पर वो सब्र करने वाले होते हैं। वल्मुक़ीमिस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो कायम करते हैं नमाज, और जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या बता दिया अल्लाह ताला ने यहाँ पे अरोगेंस का? अरोगेंस का ये एक ट्रीटमेंट है कि तुम डिसओबीडियंस होने के बाद उसके ऊपर इसरार न करो। वलम यसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो इसरार नहीं करते जो उन्होंने किया है जब जानते बूझते। तो ये एक ट्रीटमेंट बता दिया कि इसरार न करो। दूसरा ट्रीटमेंट बता दिया कि बी हम्बल, यानी हम्बल रहो, यानी अरोगेंट न रहो, आजिज़ी और इनकिसारी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और तौबा किसकी कबूल होती है? इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलूना सुअ बिजहलतिन, उन लोगों की तौबा कबूल होती है कि जो ख़ता करते हैं मगर जहालत में, इग्नोरेंस में कोई ख़ता हो जाती है। सुम्मा यतूबून मिन करीबिन, फिर उसके बाद वो तौबा कर लेते हैं जल्द ही, उनके अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर लेता है। और अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ फरमाया वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा, यानी तुम अपने गाल फुला के मत चलो, ज़मीन पे गाल फुला के मत चलो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कोई शेखी मारने वालों को और फ़ख्र करने वालों को, मुख्तालिन फ़ख़ूर को पसंद नहीं करता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तकब्बुर क्या है? बतीरल हक़ व गमतुन नास, यानी कि हक़ को ठुकरा देना और लोगों को हकीर समझना, ये है तकब्बुर। और लास्ट में एक 2-3 डिजीज़ेस हैं जो दिलों की बीमारी हैं। एक है एंगर। अब गुस्सा कब आता है हमें? जब कोई हमारे अकॉर्ड यानी हमारे मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम नहीं होता या कोई काम नहीं करता, तब हम उसके ऊपर गुस्सा
करते हैं, हमको गुस्सा आता नहीं है। जो मैंने मेरे एक टॉपिक में एंगर एंड फॉरगिवनेस एक टॉपिक है यूट्यूब पे, उसके ऊपर मैंने गुस्से के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को माफ़ करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को माफ़ कर देना। ये ट्रीटमेंट अल्लाह ताला ने बता दिया कि जैसे कि पता है शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, शिफ़ा कब मिलेगी, जब ट्रीटमेंट होगा। तो अल्लाह ताला मैंने ढूंढा कुरान में कि ट्रीटमेंट क्या दिया है, तो डिजीज़ भी दिया है और उसके साथ में उसका ट्रीटमेंट भी दिया है, तो मुझे मिला। तो उसका ट्रीटमेंट और क्या दिया अल्लाह ताला ने, एक तो माफ़ करो, खुज़िल अफ़ू अमुर बिल उर्फ़ी वारिद अनिल जाहिलीन, यानी तुम दरगुजर करो, लोगों को नेकी का हुक्म करो और टर्न अवे हो जाओ जाहिलों से टर्न अवे हो जाओ। और एक बीमारी शकावत कल्ब, यानी दिलों का हार्डनेस, यानी पत्थर दिल जिसे कहते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि हम अल्लाह की याद को भुला देते हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर सख्त दिली पैदा हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट जो कबीर ने ये कहा कि सुख में सुमिर ना करे न कोया, दुख में सुमिर ना करे, जो सुख में सुमिर ना करे तो दुख काहे होए। हम लोग अल्लाह को याद कब करते हैं, जब हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आ जाती है। अगर हम सुख में उसको याद करेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आने का सवाल ही नहीं आता, ये कबीर कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये शकावत कल्ब का ट्रीटमेंट क्या बताया, अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अगर तुम अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो तुम्हें पीस नसीब होगा और तुम्हारा दिल नरम हो जाए। एक और बीमारी है जो लास्ट बीमारी है, और बहुत सारी बीमारियां हैं मगर मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर दूँगा इंशाल्लाह। तो डिस्पेयर यानी मायूसी। ये मायूसी कब होती है, अल्लाह ताला फरमाता है वलिन अज़कना इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़ानाहा मिन्हु इन्नहु लयूसन कफूर, यानी जब हम उसको नेमत देते हैं फिर उससे हम वो नेमत छीन लेते हैं तो बड़ा मायूस हो जाता है और नाशुक्रा बन जाता है। और वही प्लेन अज़कना हो नामा हो बादन दर्रा हो मस्सत हो, और जब हम उसको नेमत देते हैं उसके बाद क्या हमने उसको पहले तकलीफ़ दिया फिर उसको हमने नेमत दी, तो फिर वो कहते हैं कि नाउ द टाइम इज़ गॉन, तो यकुलुन ज़हब सय्यात, तो वो कहता है कि अभी तो टाइम चला गया, जो बुरा वक्त था वो गया। ज़हब सय्यात अन्नी इन्नहु लफ़रीहुन फ़ख़ूर, तो वो बड़ा शेकी मारने वाला बन जाता है, इतराने वाला बन जाता है, फिक्र करने वाला बन जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसा क्यों, अल्लाह ताला ने इसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। इसका ट्रीटमेंट क्या बताया कि तुम मायूस न रहो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से तुम नाउम्मीद न हो। कह दो मेरे बंदों को जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया है कि तुम अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद न रहो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तुम कोई मुसीबत आए तो उसके ऊपर डिस्पेयर मायूसी का इज़हार मत करो, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र मानो। जो तुम्हारे पास नेमतें हैं उस नेमत के ऊपर फोकस करो, जो फेवर्स हैं उसके ऊपर फोकस करो और अल्लाह ताला का शुक्र मानो कि अल्लाह ताला ने हमें मुसीबत जो दी है वो असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। हो सकता है कि जो तुमको मुसीबत आ गई है वह तुम नापसंद करते हो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है। हो सकता है जिस चीज़ को तुम पसंद करते हो तुम्हारे लिए बदतर हो सकती है। अल्लाह वल्लाह आलम। और अल्लाह ताला ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा से ये कहा, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक व अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक व अला दीनिक। इसका मतलब अल्लाह तू दिलों को फेरने वाला है, तू मेरे दिल को भी फेर ले तेरे दीन की तरफ और तेरी इताअत की तरफ। तू दिलों को पायदारी देने वाली है, मेरे दिल को भी पायदारी दे तेरे दीन की तरफ, तेरे इताअत की तरफ।
یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی وہ کچھ میرا تدبر تھا اس میں، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے مستفید ہوں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور مجھے سوچنے کی اور تفکر تدبر کرنے کی نیک توفیق عطا کرے، اور آپ کے سامنے پھر میں کچھ اور نیا پریزنٹیشن اسی سلسلے میں کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔